Okay, so in the last lecture we were doing linear independence and dependence of vectors. इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं. Okay, then we'll start with eigenvalues and eigenvectors. Okay. Okay, let x be a vector such that ax is equal to lambda x, where lambda is any constant. Then any x which satisfies this equation is called eigenvector, and this constant lambda is called as eigenvalue. Now, if you bring these two on the same side, so this gives you a minus lambda I into x equal to 0. So this can also be written in this form. So a vector x which satisfies this condition, or this condition, is called eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda. Lambda is called as eigenvalue. Now, if A is a n cross n square matrix, when you take the determinant of this expression, ये जो हम लोग ने इस फॉर्म में लिख लिया था, जब आप इसका determinant लेते हैं and equate it to 0, then जो भी, and when you simplify it, you will get a polynomial of degree n, and this is called as characteristic equation of A. The roots of this characteristic equation are called as eigenvalues or characteristic roots. एक और चीज है कि आपने मान लीजिए इससे रूट्स निकाल लिए, आपको रूट्स मिल गए. व्हेन यू ऐड ऑल द रूट्स, तो जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी द सेम एज ट्रेस ऑफ ए, एंड इनका जो प्रोडक्ट है, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस आइगन वैल्यूज एंड तो जो इनका प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. अब ये जो आइगन वेक्टर आपने x निकाला है, ये आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होता है. For example, if x is eigenvector, let y be equal to k times x. माने हम ये जो eigenvector है इसको हम किसी constant से multiply कर देते हैं. Now let's calculate ay. ay क्या हो गया? a times k of x. k is any constant, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं. So this will be k into ax. ax is equal to lambda x because x is the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda. अब lambda को आप बाहर ले लीजिए because lambda is also constant and this kx is nothing but y. So अगर कोई eigenvector x है उसको आप k से multiply कर रहे हैं, तो जो resultant eigenvector आएगा वो भी eigenvector होगा corresponding to this value of lambda. हम खाली constant की ही बात कर रहे हैं, हम और किसी की बात नहीं कर रहे हैं. So अगर constant है, अगर आप किसी भी आइगन वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक आइगन वेक्टर ही होगा. एंड द सेम वे इफ यू डिवाइड बाय कांस्टेंट देन आल्सो इट विल बी अ आइगन वेक्टर. सो आइगन वेक्टर आर नॉट यूनिक. अगर आपका कोई एक आइगन वेक्टर निकला है, उसका कोई भी मल्टीपल विल आल्सो बी अ आइगन वेक्टर.
Okay. Next is Cayley-Hamilton theorem. Okay. Cayley-Hamilton theorem, this states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. अभी हमने characteristic equation A की क्या है? When you take A minus lambda I equal to 0, then this is the characteristic equation of A. So it says every square matrix satisfies its own characteristic equation. Now let's see this, show that matrix A satisfies its own characteristic equation. Hence obtain A inverse. माने जो characteristic equation निकालेंगे उसी से हमको A inverse calculate करना है. So characteristic equation निकालने के लिए पहले हम A minus lambda I compute करेंगे. A minus lambda I means जितने भी diagonal term है उससे आप I को subtract करिए. देखिए identity matrix क्या है? अगर ये 3x3 matrix है, identity matrix is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 की जगह यहाँ लैम्डा आ गया, यहाँ लैम्डा आ गया और यहाँ लैम्डा आ गया. अब जब आप इसको A से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्योंकि डायगोनल एंट्रीज पे ही नॉन जीरो नंबर्स हैं, सो डायगोनल एंट्री से ही आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट करोगे. सो एज वेल यू कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस कि A मैट्रिक्स में से डायगोनल एंट्री से आप माइनस लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो दैट विल गिव यू द मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I. Now take the determinant of this one and calculate it. तो जब हमने इसका determinant calculate किया तो हमारे पास आया 1 plus lambda multiplied by 5 minus lambda square. So the characteristic equation is 1 plus lambda multiplied by 5 minus lambda square equal to 0. And when you multiply these two, this is what you will get. So this is the characteristic equation of the matrix A. अब what does Cayley-Hamilton theorem say? Every square matrix satisfies its own characteristic equation. तो characteristic equation ये है every matrix satisfies. तो जहां जहां lambda है उसकी जगह हम A रख देंगे because it says every square matrix satisfies its own characteristic equation. तो if A is a square matrix, we replace lambda by A and we get this. Now we'll now calculate A तो दिया ये A square A cube calculate करिए, यहाँ पे put करिए and see that you should get 0. चलिए करिए.
सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। ओके, जिनको कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है यहाँ देख लें, ए स्क्वायर आएगा जिसमें डायगोनल एंट्रीज में 551 है, बाकी सारे जीरो हैं। ए क्यूब आ रहा है 5 10 0 10 minus 5 0 0 0 minus 1, and when you substitute this gives you zero matrix. ओके, अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, hence obtain A inverse. Hence obtain A inverse means ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने निकाला है इसकी मदद से ही आपको A inverse फाइंड करना है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। A inverse हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, we multiply both the sides from A inverse। तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे दैट विल गिव यू जीरो, इधर दिस विल बिकम ए स्क्वायर, दिस विल बिकम ए, ये ऑलरेडी ए है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, एंड दिस विल बी ए इनवर्स। अब इधर से आप ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लीजिए, दिस इज दिस मच। नाउ यू ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड ए स्क्वायर, ए एंड माइनस 5, एंड व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इट हियर दिस विल बी योर ए इनवर्स, और आप वेरीफाई कर सकते हैं ए इनटू ए इनवर्स विल बी identity matrix. Yes, ma'am. Problem होती है। Okay. Okay, next is use Kelly-Hamilton theorem to find inverse of this 2 cross 2 matrix, that is 2, 3, 3 and 5. Find this and tell me the answer, then we'll move on to the eigenvalues.
मैम इसका आंसर आ रहा है, रो में आ रहा है 5 -3, सेकंड रो में आ रहा है -3 2। -3 2। करेक्ट करेक्ट। सो इसका जैसे देखा आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रहा है लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब लैम्डा की जगह ए रखेंगे सो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7i माइनस ए, एंड व्हेन यू कंप्यूट दिस विल बी द ए इनवर्स फॉर दिस वन। सो दिस इज हाउ यूजिंग कैली-हैमिल्टन। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम में हमने ए इनवर्स करा। अब हो सकता है कि हम आपको ये भी लाइक आई कैन आस्क यू यूजिंग कैली-हैमिल्टन थ्योरम फाइंड से a टू द पावर -2। जैसे ये क्वेश्चन दिया, इसके साथ जैसे हेंस फाइंड ए इनवर्स की जगह लिख दिया हेंस फाइंड a टू द पावर -2। उस केस में आप क्या करेंगे, दोनों साइड को a टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी एक्सप्रेशन आएगा अकॉर्डिंगली करके एग्जैक्टली वही चीज है, खाली उसमें a इनवर्स की जगह a टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स के। अब जैसे पहला मैट्रिक्स ले लेते हैं A, तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला स्टेप है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना। सो व्हाट विल डू इज विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I एंड इक्वेट इट टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I मींस A के डायगोनल एंट्रीज में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करके उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। नाउ एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट, सिंप्लीफाई, you will have this, and so the roots of this are 1 2 and 3. So 1 2 and 3 are eigenvalues for this matrix A. So characteristic equation को इक्वेट कर देंगे 0 को, और जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लीजिए, जो रूट्स होंगी दे विल बी आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज आ गई, अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हमें निकालना सीखना है। तो चलिए पहले देखिए, x is an eigenvector corresponding to lambda, that means a minus lambda I into x is equal to 0, ये हमने देखा था। तो अब हम lambda equal to 1 के करस्पॉन्डिंग जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में हम lambda की वैल्यू 1 रख देंगे। तो जब आपने lambda की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ गया, a minus I multiplied by x equal to 0। so a minus I मैट्रिक्स क्या हो गई, ये जो इधर लेमडा की जगह आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1, एंड यहाँ पे बाकी एंट्रीज वैसे ही आ गई x y z equal to 0 0 0। Now from the first equation you have x plus z equal to 0, from the second equation you have y equal to 0, और थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन सेम ही है तो थर्ड इक्वेशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड इक्वेशन से आपको y की वैल्यू 0 मिल गई और फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिल गया x is equal to minus z। अब जस्ट टू सिंप्लीफाई द मैटर्स, हमने z को 1 ले लिया तो x ऑटोमेटिकली -1 आ गया, या आप z को -1 ले लीजिए तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो इस केस में हमारा आइगन वेक्टर आ गया -1 0 1। अगर मान लीजिए आप उल्टा लेते, अगर मान लीजिए इधर आप -1 लेते इधर आप +1 लेते तो आपका आइगन वेक्टर क्या आ जाता, आइगन वेक्टर आ जाता 1 0 -1। ठीक है, अब हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर x आइगन वेक्टर है किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, सो k टाइम्स x भी आइगन वेक्टर होगा। तो देखिए एक ही आइगन वेक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया। अब अगर आप इस आइगन वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये आ जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाई आर वी टेकिंग 1 एंड -1? हम इधर k और माइनस के लेके जनरल क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई द मैटर्स हम खाली यूजुअली व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग द आइगन वेक्टर्स उसमें हम वैल्यूज 1 या 0 ही लेते हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन हियर 1 -1, बट यू कैन टेक -1 and 1 आल्सो, इट्स एंटायरली योर चॉइस। सो ये आ गया हमारा आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग।
अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरी आइगन वैल्यू हमारी क्या है? 2। अब जब 2 है तो इस इक्वेशन में हम लेमडा की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ गया a माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिस्टम आ गया व्हेन यू सब्स्टिट्यूट लेमडा इक्वल टू 2। पहले इक्वेशन से क्या आ जा रहा है? z इक्वल टू 0। तीसरे इक्वेशन से क्या आ जा रहा है? x इक्वल टू 0। अब देखिए, और दूसरे इक्वेशन से क्या जा रहा है? 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। सो वी हैव टेकन y इक्वल टू k एंड वी टेक k इक्वल टू +1। सो ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया। आप चाहे तो -1 भी ले सकते हैं, ये भी आ गया। बट यू कैन नॉट टेक द वैल्यू 0। वो इसलिए क्योंकि कभी भी आइगन वेक्टर कैन नॉट बी अ जीरो वेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर, आइगन वेक्टर कैन नॉट बी अ जीरो वेक्टर। अगर आप कुछ कंप्यूटेशंस कर रहे हो और आपका आइगन वेक्टर जीरो वेक्टर आ रहा है, इसका माने आपने कहीं कुछ गड़बड़ी करी है। सो जस्ट recalculate your calculations. So that is why यहाँ पे x और z ऑलरेडी 0 आ रहे हैं, so y की वैल्यू 1 आ गई। सो दिस इज अनदर आइगन वेक्टर। चलिए, इसी तरह आप लेमडा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने की कोशिश, मतलब फाइंड आउट द आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 3 and tell me the answer. M101. 101 है, okay? Yes, Yeah, ma'am. that's 101, correct. तो इसमें भी आप देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन तो सेम ही है। सेकंड इक्वेशन से आपको आ गया y इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन से आ गया x इक्वल टू z। सो व्हेन यू टेक z एज 1, x विल बी ऑटोमेटिकली 1, और यू टेक x एज 1, सो z1 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब ये तीन आइगन वेक्टर्स आपके आ गए। लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग x1, लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग x2, लेमडा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग x3। Now you can verify that this x1, x2, x3 are linearly independent. अगर आपके linearly dependent आ रहे हैं, that means some mistake you have done. Suppose आपने ये वाला जैसे lambda equal to 3 के corresponding निकाला, कुछ calculation mistake हो गई आपका, और ये आपका यही आ गया। ठीक है, -1। Okay, let me change the color, तो थोड़ा सा आपको brightly दिखेगा। Okay, सपोज ये आपका आ गया, कुछ मिस्टेक आपसे हो गई और ये आ गया -101। अब जब आप यहाँ पे -101 रखेंगे, जैसे ही आप रखेंगे आप देखेंगे ये दोनों वेक्टर्स हमारे सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स कहीं तो भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स सेम आ जाएंगे, माने ये सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सो एक चीज आपको ये चीज और ध्यान में रखनी है कि ये जो आपके वेक्टर्स जो निकालेंगे आप, ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। प्लस आइगन वेक्टर कभी भी जीरो वेक्टर नहीं होता है।
So these are the two things you have to keep in mind. Eigenvectors are never zero. Eigenvectors are linearly independent. तो ये चीजें आप ध्यान में रख के चलेंगे तो कुछ एक्सटेंट तक यू कैन बी श्योर दैट योर आंसर इज करेक्ट. बाकी तो मिस्टेक्स तो काफी तरह की हो सकती हैं. चलिए, ये प्रॉब्लम है आपका. आइगन वैल्यूज तो आप लोग को दिख ही रही है. खैर 314026005 इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पहले निकालिए. एनीहाउ मत निकालिए, आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है तो आप तो देख के बता देंगे. एनीहाउ, सो दिस इज 235. सो वही प्रोसीजर है, a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट लेके इक्वल टू 0 लेके दिस वन. अब एक चीज आप लोग और ध्यान रखिए, जब एग्जाम में आएगा तो आपको प्रॉपरली ये a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के करना पड़ेगा. बट अगर मल्टीपल चॉइस में कहीं आए या कुछ हो तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, की जा रहा है ये क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स को देखिए. अगर दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, माने ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके नीचे के सारी एंट्री 0 हैं. अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो स्ट्रेट अवे यू कैन राइट द आइगन वैल्यूज आर 3 2 5, दैट इज द डायगोनल एंट्रीज विल बी द आइगन वैल्यूज. इसी तरह इसकी जगह अगर मान लीजिए हमने ये मैट्रिक्स दे दिया होता आपको 3 2 5 और इधर हम लिख देते 1 4 एंड 6 एंड इधर पे हम 0 0 कर देते हैं. अब ये क्या है, ये हो गई आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि लोअर ट्रायंगल में नॉन जीरो एंट्रीज हैं, अपर ट्रायंगल में जीरो एंट्रीज है. सो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इस केस में भी द एंट्रीज एट द प्रिंसिपल डायगोनल विल गिव यू द आइगन वैल्यूज. आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही लिख दीजिए. दिस अगेन रिमेंबर, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एक या दो नंबर के जो अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में यू कैन यूज दिस. बट इफ इट इज अ 3 और 5 मार्क क्वेश्चन, उस केस में आपको प्रॉपरली जैसे हम लोग ने इस केस में निकाला है, this equal to 0 characteristic equation and then eigen values, the same thing you will have to do in this one. So for upper or lower triangular matrices, the diagonal, the entries on the principal diagonal will be the eigen values. Okay. So now eigenvector corresponding to lambda equal to 2. So lambda equal to 2 रखा तो ये सिस्टम आ गया. This is what we get. अब देखिए आखिर के दोनों, अब हम एक स्टेप और जाके इस एंट्री को भी 0 कर सकते थे, बट ठीक है हमने नहीं किया, कोई बात नहीं. लेकिन दोनों से ही आपको मिलेगा z इक्वल टू 0. सो z इक्वल टू 0 यहां से मिल गया. नहीं करना पड़ेगा, वेट हमने. ओके, सो नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज you will have to make this entry 0. I have not made an एक स्टेप हम मिस कर गए हैं. सो इसको आप रो ऑपरेशन से इस एंट्री को 0 कर लीजिए. तो पहला इक्वेशन ये आ गया. दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 6 into z equal to 0. यहाँ पे 6 कर दीजिए and which will give you z equal to 0. अब देखिए z इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एक x और y में रिलेशन मिल जाएगा. बट y का कहीं पे भी y 0 नहीं आया है, ना हमें y का कुछ पता है. सो इन दिस केस ये जो लास्ट रो है इधर से हम ये निकाल लेंगे 0 into y इक्वल टू 0, क्योंकि x का हमें फर्स्ट रो से पता चल जाएगा, z का हमें सेकेंड से पता चल गया दैट द वैल्यू ऑफ z इज 0. y के बारे में कहीं से नहीं पता चल रहा है, तो ये जो 0 रो है इसको हम y के करस्पॉन्डिंग ट्रीट करेंगे, ले लेंगे, and then we'll write 0 into y equal to 0, and this will give you y equal to k. Once you have y equal to k, you will also get x in terms of k, so this will be minus k. And again the same thing, let k be equal to 1, so x will be minus 1 and y will be 1. Z is already 0, so this will be the eigenvector corresponding to lambda equal to 2.
Okay, now find out eigenvector corresponding to lambda equal to 3. वन जीरो जीरो 100. Yeah, that's correct. 100. Lambda equal to 3 रखेंगे तो ये सिस्टम आएगा. Then you do the row operations और उसके बाद जब आप करेंगे तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी. फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो ये जो जीरो इक्वेशन है इसको हम x के साथ ले लेंगे. So this will give you x equal to k, and when you take k equal to 1, this is what you will get. Okay, now find out the eigenvector corresponding to lambda equal to 5. मैम 3 to 1 Hmm? डिपेंड करेगा मैम. 3 to 1 मतलब k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. 3 to 1 यदि k Yes, बराबर 1 ले ma'am. रहे हैं. 3 to 1. हाँ ठीक है, k की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा बिकॉज आई टोल्ड यू आइगन वेक्टर्स के लिए यूजुअली वी टेक द वैल्यू ऑफ एज 1 या 0 जैसा भी होता है. सो k की वैल्यू के लिए 3 to 1, दैट्स करेक्ट. ओके. Okay, so corresponding to lambda equal to 2, we have this eigenvector. Corresponding to lambda equal to 3, we have this, and corresponding to lambda equal to 5, we have this, and you can check that these are linearly independent. चेक करने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर जो हम लोग ने डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस करने की जरूरत है. अगर आपको खाली जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पूरा प्रोसीजर करना है. बट अगर आपको जैसे रफ में चेक करना है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, आप क्या करिए, ये बस इसका फर्स्ट वेक्टर इधर रख दीजिए, सेकंड वेक्टर इधर रख दीजिए, एंड थर्ड वेक्टर इधर रख दीजिए, एंड देन कैलकुलेट इट्स डिटरमिनेंट. दिस इफ दिस डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, दैट मींस ये तीनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है. सो दिस इज द वे यू कैन चेक वेदर दीज आर लिनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट. चलिए अब आ जाते हैं हम, ये तो हमारे सिंपल केस थे जहां पे हमारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट थी. और जब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं तो जितनी आइगन वैल्यूज होंगी उतने ही आइगन वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास रिपीटेड आइगन वैल्यूज हों. तो कुछ केसेस में जैसे आपके अगर 3x3 मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए सपोज आपकी आइगन वैल्यूज आई से अल्फा बीटा बीटा,
So that means beta eigenvalue is repeated 2 times. So अल्फा जो डिस्टिंक्ट है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। अब ये जो रिपीटेड आइगन वैल्यू है बीटा, इस केस में कई बार आपको दो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, किसी किसी केस में आपको खाली एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। सो देयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलिए देखते हैं इसका। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो चलिए पहले ए वाला लिया, सो इसका हमने ये डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकाला एंड वी इक्वेटेड टू 0. So the eigenvalues that we get is 1, 1 and 3. ओके, सो जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है 3, पहले उसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 3 रखा तो ये आया। रो रिड्यूस द मैट्रिक्स, उसके बाद हमारे पास ये आया, तो फर्स्ट रो से माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गया। सेकेंड रो से आ गया 2z इक्वल टू 0, y कहीं नहीं आया, तो ये जो 0 रो है इससे हम y ले लेंगे। सो 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू y इक्वल टू k। सेकेंड इक्वेशन गिव्स यू x z इक्वल टू 0 और फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा k z x इक्वल टू k। टेक द वैल्यू ऑफ k एज 1, सो ये आपका आ जाएगा 1 1 0। Okay, now let's come to lambda equal to 1, which was the repeated root. तो lambda equal to 1 रखा, so this is what the system is. अब देखिए फर्स्ट और 2 रोज दोनों सेम है, आप चाहें तो रो रिड्यूस करके इसको भी 0 कर दीजिए, बट हमने नहीं किया। तो आगे ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, जब आप इसको रो रिड्यूस करके 0 कर देंगे तो दोनों रो 0 आ जाएंगी। तो एक इक्वेशन से हम आ गया 0 इंटू वाई इक्वल टू 0 और दूसरी 0 रो से आ जाएगा 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही सेम है, एक जगह वेरिएबल y है, एक जगह वेरिएबल z है, तो ये कांस्टेंट्स भी हम लोग फर्क फर्क लेंगे, सेम नहीं लेंगे। जरूरी नहीं है कि जब z जो वैल्यू ले वही y भी वैल्यू ले, बिकॉज नो वेयर इट्स रिटन दैट z इज इक्वल टू y। सो z को हमने k ले लिया, y को हमने l ले लिया, एंड सो x आई गेट एज माइनस l माइनस k। अब एक बार हम l को 0 लेते हैं और k को 0, l को 1 लेते हैं, k को 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, y की हो जाएगी 1 एंड z की हो जाएगी 0। तो ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया। दूसरी बार हम l को 0 लेते हैं और k को 1 लेते हैं, सो दिस इज व्हाट वी गेट एंड वी गेट दिस आइगन वेक्टर। अब देखिए ये आप ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है, यू कैन वेरीफाई दैट आल्सो। और बाकी इससे भी वेरीफाई हो जाता है क्योंकि एक बार आपने l को 1 लिया है, दूसरी बार l को 0 कर दिया है, एक बार k को 0 लिया, k को 1। सो इस तरह से जब आप आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। सो in this case, corresponding to repeated eigenvalue lambda equal to 1, you get two linearly independent eigenvectors, and therefore this is the answer. And again, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये तीनों linearly independent है या नहीं। You just take the determinant and you will have the answer. देखिए इन केसेस में हम खाली लेमडा की वैल्यू पुट करके इक्वेशंस डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, अज्यूमिंग दैट दिस यू विल रो रिड्यूस योरसेल्फ एंड कम टू दिस इक्वेशन। क्योंकि अब आप इतनी बार हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कर चुके हैं कि आप रो रिडक्शन आपको अच्छी तरीके से पता है, तो हम खाली लेमडा इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो रख के जो सिस्टम आ रहा है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बाकी रो रिड्यूस करके इधर तक आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। ज्यादा स्टेप्स नहीं, 1-2 स्टेप्स लगते हैं, सो दैट यू कैन डू इट। Okay. Now,
Next is this matrix. So let's come to this matrix. A is this matrix. अब देखिए यहाँ पे तो 2 0 है, अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो ये हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती, आराम से आइगन वैल्यू निकल आती, बट नहीं. सो वी अप्लाई द सेम प्रोसीजर. सो हमारी आइगन वैल्यूज आ रही है 3, 3 एंड 6. दैट मीन्स 3 इज द रिपीटेड आइगन वैल्यू. Now corresponding to this 6 जो कि रिपीटेड नहीं है, हमारे पास ये सिस्टम आ जाता है. सेकेंड इक्वेशन से यू गेट 2x plus 3y plus z equal to 0. थर्ड इक्वेशन से यू गेट 2x minus 3y equal to 0. अब y बचा है, so from the first equation we get 0 into y equal to 0, and then you get this as the eigenvector. अब हाँ, एक चीज और देखिए यहाँ पे, अगेन यू विल से हमने k इक्वल टू 4 क्यों लिया है. हर जगह हम लोग k इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया. आप ले सकते हैं. चलिए देखते हैं क्या होता है. अगर हम k इक्वल टू अगर मान लीजिए हम 1 रखते हैं यहाँ पे, सपोज आई टेक k इक्वल टू 1, तो हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा. k इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -9/4, y की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड z की वैल्यू हो जाएगी -3/4. आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें. दिस इज परफेक्टली ओके, यू कैन राइट लाइक दिस. बट क्योंकि हमें पता है कि अगर ये आइगन वेक्टर है, तो इसको अगर हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्टेंट वाला भी हमारा आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 6. सो जस्ट टू लुक गेट rid of this fractions, हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट आई गेट -9, 4 एंड -3. तो बाद में 4 से मल्टीप्लाई करने की जगह हमने यहाँ क्या किया है, k को ही 4 ले लिया है, ताकि हमें ये इस फॉर्म में मिल जाए. पर अगर आप एग्जाम में k इक्वल टू 1 लेके इस फॉर्म में आइगन वेक्टर रखते हो, इसमें कुछ गलत नहीं, परफेक्टली ओके. इस फॉर्म में हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग जब आगे डायगोनलाइजेशन करेंगे मैट्रिक्स का देखेंगे, तो उसमें अगर ये बिना फ्रैक्शंस में होंगे तो थोड़े से कैलकुलेशंस में सिंपल हो जाएगा. बाकी और कुछ ऐसा वैलिड रीजन नहीं है कि हम k को हम क्यों 4 ले रहे हैं, 1 क्यों नहीं ले रहे हैं. सो इट्स एंटायरली अप टू यू. आप 1 भी रख सकते हो और 4 भी रख सकते हो. ओके, नाउ लेट्स कम टू द रिपीटेड आइगन वैल्यू, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 3. जब आपने लैम्डा इक्वल टू 3 किया तो ये सिस्टम निकला. अब देखिए फर्स्ट और थर्ड रो दोनों में ही x की ओके, आई हैव रो रिड्यूस इट. चलिए अच्छी बात है. तो हम इसको और रो रिड्यूस करके हमारा फाइनल सिस्टम ये आ जा रहा है. अब पहले रो से आ जाएगा 2x plus z equal to 0, दूसरे से आ गया 2x equal to 0, तीसरे से आ गया 0 into y equal to 0. So y equal to k, this gives you x equal to 0 and this gives you z equal to 0. अब k की वैल्यू आपने 1 रखी तो आपको एक आइगन वेक्टर मिल गया 0, 1, 0. अब अगर आप k की वैल्यू -1 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0, -1 एंड 0. बट ये दोनों तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा. सो दीज टू आर नॉट लिनियरली इंडिपेंडेंट, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस वन. सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड. अब फिर इधर आ जाते हैं. अब k की एक ही वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी k की वैल्यू लोगे तो वो इसका मल्टीपल ही देगा, तो जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे. तो इस केस में हमको रिपीटेड आइगन वैल्यू जो लैम्डा इक्वल टू 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग खाली एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 1. सो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिला, और जो रिपीटेड आइगन वैल्यू है लैम्डा इक्वल टू 3, उसके करस्पॉन्डिंग भी हमको एक ही आइगन वेक्टर मिला. सो देखिए ये दो एग्जांपल्स अलग अलग हैं. इस केस में आपकी रिपीटेड आइगन वैल्यूज थी, फिर भी आपको 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिले, और इस केस में आपकी रिपीटेड आइगन वैल्यू थी और आपको एक ही आइगन वेक्टर मिला. सो ये आपका केस टू केस फर्क पड़ेगा कि अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू है
तो आपको रिपीटेड आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। चलिए आज यहां तक, we'll stop here. If you have any questions you can ask. बोलो बोलो। नोट्स शेयर कर दीजिए, हाँ नोट्स में शेयर कर दीजिए आप। अरे नोट्स तो शेयर कर देंगे, तुम लोग पढ़ाई तो करो। तुम लोग हमें सब पता है, बस खाली लॉगिन करके बैठ जाते हो, पढ़ते पढ़ते कुछ हो नहीं, क्योंकि आंसर्स तुम लोग के यहाँ से आते नहीं है बिल्कुल। सब आराम करते हो कि ठीक है 1 घंटा हमको करना है, लॉगिन करके छोड़ दो। देखो तुम लोग अगर सोच रहे हो कि आखिर टाइम में कर लोगे, आखिर टाइम में जब करोगे इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू। तो स्टार्ट स्टडिंग, जो क्वेश्चंस हो पूछो एंड गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। जहां आपको दिक्कत आ रही है वहां पूछो। नोट्स तो ठीक है हम शेयर कर देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी बुक ले लोगे उसमें भी यही चीजें होंगी, बट दैट इज नॉट ए इशू। बट तुम लोग पढ़ना शुरू करो, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है जब तुम लोग बाद में एंटर करते हो, हमारा पूरा स्क्रीन ही बिगड़ जाता है। तुम लोग ने देखा होगा कितनी बार करा। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, आई अंडरस्टैंड, तुम लोग की भी दिक्कत नहीं है। उसकी वजह से आज जैसे हमने 2-3 लोग को 10 मिनट के बाद डिनाई कर दिया, बट अगेन जब आता है देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। और जहां हमें आपको एंट्री देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, इट्स एंटायरली योर चॉइस। यू पीपल हैव ग्रोन अप, आपकी इच्छा है आप कितनी देर पढ़ो। हमें ये नहीं कि सबके सब यहाँ पे करे हो, जिनको पढ़ना है वही रहो। बट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि अगर हम वो बार बार बीच बीच में इसको मिनिमाइज करके एंट्री देते हैं, हमारा सारा स्क्रीन बिगड़ जाता है, and that becomes a problem for me. So just try and come on time, because I also feel कि कुछ लोग हो सकता है genuinely नहीं टाइम पे लॉग इन कर पाते होंगे, बट ओके ठीक है। और कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? ओके, ऑल ऑफ यू कैन लीव देम। थैंक यू मैम। अरमान, अरमान भाई, अरमान आर यू देयर?